Okay. So have I explained you the factors affecting electron ionization energy also? Screening effect, penetration effect, atomic radius, like that. Have I explained you that? Yes, ma'am. All right. Now just see. So what exactly do we have here? Just see. So when we are talking about what? When we are talking about the electron gain enthalpy, so we understood that whenever the atom gains an electron and keeps the electron very tightly inside the atom, then an electron enters the atom, and that electron loses a lot of energy. Yes or no? And when that electron loses a lot of energy, that change in energy is called as what? That change in energy is called as electron gain enthalpy. So we did that, the bigger atom is not able to hold the electrons tightly. So we have this electron and we have this nucleus. So we're going to have the K shell, L shell, and the M shell, like that. Got that? So we're going to have these two electrons, and we're going to have one, two, three, four, five, six, seven, eight, like that. And this is the electron. So this electron will not be held tightly. So here the value will be less negative. I hope you're understanding. Less negative means that this gap of small minus big, yani ki final minus initial. You understand? This gap of final minus initial, this gap is too low. That means if outside the energy was 100 joule, inside the energy is 60 joules. It has lost only 40 joules of energy. Am I right or not? It has lost only 40 joules of energy. Are you understanding? But when we are talking about what? When we are talking about the smaller atom, this is going to hold the electrons tightly. So if the outside energy is 100 joules, the inside energy will be 10 joules. So final energy minus the initial energy will be 10 minus 100, and answer is going to be minus 90 joules. So with the negative sign, the greater the number. With the negative sign, the greater the number. What exactly does that mean? Just tell me. With the negative sign, the greater the number, that it would mean what? With a negative sign, the greater the number, it would basically mean what? That this is going to hold the electrons tightly. So we did two things, that along the period, the electron gain enthalpy goes on becoming more negative. This was one point we learned. Am I right? Because as the size goes on decreasing, as size goes on decreasing. Am I right or not? And second is going to be along the period, the electron gain enthalpy, the size goes on decreasing, and a number of protons goes on increasing. Am I right or not? So along the period, electron gain enthalpy goes on becoming more and more negative. And second, what do we have? Just tell me. So this is one part, yes or no? The third part that we have, so along the period, the electron enthalpy becomes more negative. And second part that we have to understand is what? Second part that we have to understand here is that for noble gases, for noble gases, electron affinity is zero. That means they do not want to gain electrons. I hope you're understanding. Electron affinity is zero. That is, they do not want to gain electrons. Are you understanding? They do not want to gain electrons. Are you understanding my point or not? So when they do not want to gain electrons, what does that mean? Because their octet is complete. So we will say that their electron gain enthalpy is highly positive. बिकॉज इंथैल्पी क्या होता है? इंथैल्पी एक तरह से वैल्यू है ना? तो इलेक्ट्रॉन की इंथैल्पी बहुत हाई पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर एटम के जा ही नहीं पा रहा। पॉजिटिव वैल्यू कब आती है? इलेक्ट्रॉन की इंथैल्पी समझते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ई फाइनल माइनस ई इनिशियल होता है मैम। तो अगर ई फाइनल माइनस ई इनिशियल होता है तो इसका मतलब मुझे बताइए क्या है? अगर ई फाइनल माइनस ई इनिशियल होता है तो इसका मतलब मुझे क्या है? हम बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। इट डज नॉट वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, इट हैज हाई पॉजिटिव electron gain enthalpy. Are you understanding? What does that mean? What does that mean? That मैम इनिशियल एनर्जी तो 100 थी, लेकिन अंदर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन को इतनी रिपल्शन मिली कि मैम वो कभी भी, है ना, उसकी एनर्जी बढ़ के हो गई 800। तो
तो 800 जूल माइनस 100 जूल कितना आ गया? 700 जूल की वैल्यू आ गई। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब अंदर क्यों एनर्जी क्यों बढ़ी? क्योंकि एक एटम था, उसका न्यूक्लियस था, उसके पास के शेल थी, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, और एल शेल थी, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन थे। बोलो है ना? तो वी हैड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दी के शेल, और 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास 2 और 8। अब आप सोचो कि एल शेल पहले से ही भरी हुई है, उसमें आप 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दो। बोलो है ना? तो अगर आप उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दोगे, तो वो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आउट, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। सो दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस सम फोर्स ऑफ रिपल्शन, और वो धक्का यहाँ मारेगा। फंडा समझ में आया कि नहीं आया बताइए? तो जब वो धक्का मारेगा, इसका मतलब मुझे बताइए क्या है? जब वो धक्का मारेगा, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ रहना मुश्किल है। और अगर मैं चाहती हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रखा रहे, है ना, अगर मैं चाहती हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रखा रहे, इसका क्या मतलब है? कि मैम ये जो इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर रखा रहेगा, इसका क्लियर कट मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन बहुत रिपल्शन झेलेगा, तो इसको यहाँ रखे रहने के लिए मुझे और बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। मान ले 100 जूल और देनी पड़ेगी। तो हम तो सोच रहे थे कि मैम बाहर एनर्जी 100 जूल है, अंदर ये अट्रैक्शन फील करेगा। पर अट्रैक्शन ही कैसे फील करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अटेंशन मांग रहे हैं कि भाई तू मुझे अपनी अट्रैक्शन दे दे, हम तो तेरे घर के हैं। ये बाहर का आदमी आ गया। अब क्या करें? इसको यहाँ रखना है तो तुम्हें इसको लड़ना पड़ेगा, अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, गुस्सा बढ़ाना पड़ेगा। तो एज ए रिजल्ट इसकी फाइनल एनर्जी हो जाएगी 800। तो फाइनल 800 माइनस इनिशियल 100, वैल्यू आ गई 700। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? यस इज द मैम। कॉन्सेप्ट? ठीक है, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जब आप इसकी बात इस तरीके से करते हो, तो ये हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखो, लेकिन इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो एक एक्सेप्शन तो नोबेल गैस का ही हो गया। अब आप ये देखो, जब हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं, ये एक्सेप्शन हमको देखने को मिलता है बेटा ग्रुप 15 में, ये एक्सेप्शन हमको देखने को मिलता है ग्रुप 16 में, और यही एक्सेप्शन हमको देखने को मिलता है ग्रुप 17 में। ग्रुप 15 में हम नॉर्मली हर ग्रुप में क्या बोलते हैं कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, है ना। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। तो साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है क्योंकि न्यू शेल ऐड हो रही है। क्योंकि न्यू शेल ऐड हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का ऐड होना बड़े एटम में मुश्किल है, क्योंकि बड़ा एटम बहुत बड़ा है। तो जब तक उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर पहुंचती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी कम हो जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपने अंदर खींच नहीं पाता, और अगर वो इलेक्ट्रॉन अंदर आ भी जाता है, तो कोई खास अट्रैक्शन उसको मिलती नहीं है। एज अ रिजल्ट, अगर एनर्जी बाहर 100 जूल थी, तो अंदर आ जाते 90 जूल ही रहती है। तो गैप जो होता है वो -10 जूल ही होता है। तो हमने पढ़ा था डाउन द ग्रुप जाते थे, इट बिकम्स मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं बताइए? ठीक है। सो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये हमारे पास होता है। तो डाउन द ग्रुप हर ग्रुप का ट्रेंड क्या है? इट गोज ऑन बिकमिंग लेस एंड लेस नेगेटिव, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जा रही है डाउन द ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम हो रही है। और अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम हो रही है। और अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसको गेन करना मुश्किल है। लेकिन अब आप सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम हो गया। लेकिन ग्रुप 15 में आएगा मेरे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। दिस इज एंटीमनी। Bi is bismuth. As is arsenic. P is phosphorus. N is नाइट्रोजन। तो हम यहाँ से क्या बोलें? हम यहाँ से एक सिंपल सी बात ये बोलें कि अगर मेरे पास यहाँ फॉस्फोर नाइट्रोजन है, यहाँ फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, तो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में होना क्या चाहिए था? नाइट्रोजन का साइज छोटा है और फॉस्फोरस का साइज बड़ा है। तो आइडियली इलेक्ट्रॉन किसको कस के पकड़ना चाहिए था? जो नॉर्मल ट्रेंड हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन किसको कस के पकड़ना चाहिए था, मुझे बताइए। इलेक्ट्रॉन कस के पकड़ना चाहिए था एन को। इलेक्ट्रॉन कस के पकड़ना चाहिए था किसको? एन को। समझ में आ रही है बात? तो अगर इलेक्ट्रॉन कस के पकड़ना चाहिए था एन को, बट हो गया उल्टा। क्या? कि इलेक्ट्रॉन कस के कौन पकड़ेगा? कस के कौन पकड़ेगा? ये मैं इसको हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ कि आपको समझ आए कि इलेक्ट्रॉन कस के पकड़ने का मतलब हु इज गोइंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। इट इज गोइंग टू बी phosphorus will hold electron strongly than nitrogen. Are you understanding my point? The phosphorus will hold electrons tightly than phosphorus. कॉन्सेप्ट समझ में आया?
तो हम यहाँ से ये समझ रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ना हमारे लिए मुश्किल नाइट्रोजन के लिए हो गया। अब इसका रीजन देखो क्या, कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p3। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, सो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। फंडा समझ में आया? तो नाइट्रोजन कौन है मेरे लिए? 1s2 2s2 2p3। फॉस्फोरस कौन है मेरे लिए? 1s2 2s2 2p6। बात समझ में आई? So when we have 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 like that, ठीक है? तो अब मुझे बताओ इसमें आने वाला इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? 2p में। और फास्फोरस में आने वाला इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? 3p में, है ना? तो फास्फोरस में आने वाला इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है मुझे बताइए? 3p में। और नाइट्रोजन में आने वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2p में। बात समझ में आई? तो अगर नाइट्रोजन में आने वाला इलेक्ट्रॉन 2p में आ रहा है और फास्फोरस में आने वाला इलेक्ट्रॉन 3p में आ रहा है, आप लॉजिकली समझो क्या, आप ऐसे समझो कि मेरा घर छोटा है, तो मैं अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुला रही हूँ तो मैं ऐसे तो अट्रैक्ट कर रही हूँ, मुझे लगा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, पर अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो मेरे घर में रहने वाले लोगों को जगह कम पड़ गई। ठीक है, मैं उनको बोल रही हूँ भैया गेस्ट को सुलाना है, दूसरे कमरे कमरे में सो जाओ तुम लोग, तो वो बेचारे एक ही बेड पे घुस घुस के सो रहे हैं। और क्योंकि गेस्ट को सुलाना है तो वो कोशिश क्या करेंगे कि भाई जल्दी, जितना जल्दी हो जाए गेस्ट उतना चला जाए। क्योंकि 2p का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन की एंट्री उसके अंदर मुश्किल है। और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की एंट्री मुश्किल है तो क्या होगा मुझे बताइए? कि मैम वो इलेक्ट्रॉन इसमें घुस तो जाएगा, पर जो इनर इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऑलरेडी पहले रह रहे हैं, द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर रह रहे हैं, दोज एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी एबल टू मेक स्पेस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो वो उसको क्या करेंगे? विल नॉट बी एबल टू मेक स्पेस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। You understand the point? And when they are not going to, when they will not be able to make space for the incoming electrons, तो इसका मतलब क्या है? When they will not be able to make space for the incoming electrons, तो इसका मतलब क्या है? कि जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, है ना, जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, उनका क्या हाल है? When they will not be able to make space for the incoming electrons, तो जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, वो बेचारे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, so the existing electrons will repel the incoming electrons। बात समझ नहीं? और अगर वो उसको रिपेल करेंगे तो इसका अंदर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन तो हो जाएगा, पर उस इलेक्ट्रॉन का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे हैं। लेकिन फास्फोरस में क्या है कि शेल साइज बड़ा है ना? 3p में आना का मतलब क्या है? कि 3p डेफिनेटली न्यूक्लियस से दूर है, डेफिनेटली दूर है। तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई ये अगर मेरे पास 1s है, ये 2s है, ये 2p है, यहाँ 3s है और यहाँ 3p है, 3p डेफिनेटली न्यूक्लियस से दूर है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब अगर 3p न्यूक्लियस से दूर है तो इसका क्या मतलब है बताइए? कि अगर 3p न्यूक्लियस से दूर है इसका क्या मतलब है बताइए? द आइडिया इज कि दिस 3p बिकॉज वो न्यूक्लियस से दूर है तो क्या होगा? बोलिए। और एज अ रिजल्ट वी हैव 3s एंड वी आल्सो हैव 3p। तो इलेक्ट्रॉन 3p में मुश्किल से आएगा, लेकिन क्योंकि अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास जगह बहुत है, वो कह रहे हैं यार ये आउटर इलेक्ट्रॉन हमको अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे कमरे में सुला देंगे जहां हम इसको देख ही नहीं रहे। तुम समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि मेरे को गेस्ट नहीं पसंद आ रहा है, बट मैं उसको ऐसा कमरा दे दूंगी कि भाई तू इस कमरे में लेटा रहे, तो डोंट इंटरफेयर इन माय प्रिवेसी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है विल गेट एनफ स्पेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट एनफ स्पेस। फंडा समझ में आया या नहीं बताइए? तो अगर इफ दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट एनफ स्पेस, इसका क्या मतलब है मुझे बताइए? इफ दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट एनफ स्पेस, इसका क्या मतलब है? कि मैम मेरे पास 1s के इलेक्ट्रॉन 2s 2p 3s 3p में इलेक्ट्रॉन आया, तो आते वक्त उसको अट्रैक्शन कम मिली, पर जब वो एटम में घुस गया तो उसको इन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन कम मिली। और जब उसको एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन कम मिली तो जो भी थोड़ी बहुत अट्रैक्शन उसको मिल रही थी वो काफी थी इसको अपनी शेल में कस के रखने के लिए। लेकिन बेचारा नाइट्रोजन इसको कस के पकड़ रहा था, लेकिन नाइट्रोजन ने तो कस के पकड़ा, पर जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स थे नाइट्रोजन में, उन्होंने इसको इतना रिपल्शन दिया कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई। देखो आप ऐसे समझो जैसे आप कुछ करना चाह रहे हो और अगर आपको कोई करने ना दे तो व्हाट विल यू फील? व्हाट विल यू फील? कैसी फीलिंग आएगी बताइए?
बताइए, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो दैट इज द आइडिया। तो जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता जो, और उसको जबरदस्ती करवाया जा रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और एक और छोटा मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल विल रिपेल नॉर्थ पोल, और हम नॉर्थ पोल को ही बड़े मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ चलाएंगे, तो इस वाले मैग्नेट की एनर्जी बढ़ेगी, इसमें गुस्सा बढ़ेगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। सो वी हैव एनर्जी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट और नॉट? जस्ट टेल मी। Yes, ma'am. राइट? तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक, अगर मैं आपसे पूछूं, आप ध्यान से बताना, मैं अगर आपसे पूछूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, तो हम बोलेंगे काई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं? काई से। तो काई ऑफ नाइट्रोजन इज डेफिनेटली मोर देन द काई ऑफ फास्फोरस। क्यों? क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर है, तो उसको बैठ के कौन अट्रैक्ट कर रहा है? लेकिन अब आप देखो, अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कम है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है किसकी? फास्फोरस की। समझ में आ रहा है? सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है किसकी? फास्फोरस की। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल। Yes, ma'am. एनी डाउट्स इन दिस और नॉट? सिमिलरली इसी तरह से ग्रुप 7 16 की बात करिए, ऑक्सीजन सल्फर, और ग्रुप 17 की बात करिए, फ्लोरीन क्लोरीन। समझ में आई बात? तो यहाँ बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। समझ में आई बात? लेकिन हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे, तो रीजन क्या देंगे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, तो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p4। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, वो अपने 2p4 में गेन करेगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा वो अपने 2p4 में गेन करेगा, और 2p4 का साइज छोटा है। और सल्फर जब गेन करेगा, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो अपने 3p4 में गेन करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक Yes, बात ma'am. है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा हुई? तो इलेक्ट्रॉन 3p में आ रहा है, 3p में अट्रैक्शन कम है, पर रिपल्शन भी इतनी नहीं है, क्योंकि 3p का साइज बड़ा है। तो 3p में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही क्या है? 3p में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही कोई खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब खास रिपल्शन नहीं फील कर रहे, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से आ सकता है। फंडा समझ में आया या नहीं? बताइए। तो अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसका मतलब मुझे बताइए क्या है? कि we will have 1s2, we will have 2s2, we will have 2p6, we will have 3s2, and we will also have 3p4. Any doubts in this or not? Just tell me. Got the point? So we're going to have 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज गोइंग टू बी मोर देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब जो सल्फर है, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन देगा आने वाले इलेक्ट्रॉन को देन ऑक्सीजन। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज गोइंग टू बी मोर देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की। कि जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को एंटर करने के लिए फैसिनेट कौन कर देगा कि भाई तू आ जा, इलेक्ट्रॉन आ जा? वो है हमारा फ्लोरीन। बात समझ में आ रही है? वो है हमारा फ्लोरीन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बट अगर आप क्लोरीन की बात करोगे, तो इसका मतलब मुझे बताइए क्या है? इसका मतलब मुझे बताइए क्या है? बताइए। एनी डाउट्स इन दिस? द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? concept clear, Vedant? So this is the idea. So when we talk about the electronegativity, and when we talk about the electron gain enthalpy, so the idea here is this. Is the concept clear or not? Yes, ma'am. Got it? आप देखते हैं आगे, आप देखते हैं आगे। तो दिस इज वन आइडिया वी हैव। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब आप ये समझो कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है,
ये चीज समझ आ गई। तो ये हमारे 3 एक्सेप्शंस है पूरे पीरियोडिक टेबल में। अब जैसे मैं बोलती हूँ कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की बात करो, तो ओवरऑल नेट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नाइट्रोजन की कैसी रहती है, नेगेटिव। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नाइट्रोजन की जो थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो क्वेश्चन कैसे आता है कि नाइट्रोजन की थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। व्हाई इट इज अ हाई पॉजिटिव वैल्यू, व्हाई इट इज अ हाई पॉजिटिव वैल्यू, जस्ट टेल मी। कि नाइट्रोजन का जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन का थर्ड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वो हाई पॉजिटिव वैल्यू, बोल क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो तुझे ये बात समझ आती है कि 1s2 2s2 2p3। तो पहली बात तो कि पहला इलेक्ट्रॉन डालना ही इसके अंदर बहुत मुश्किल है, क्यों? क्योंकि अगर आप ये ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड ही रहना चाहती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड ही रहना चाहती है। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 1s2 2s2 2p4। हाँ या ना? वो बन जाएगी 1s2 2s2 2p4। फिर वो एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगी तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? 1s2 2s2 2p5। पर आप ये देखो, अभी ये नाइट्रोजन था, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये n-1 बन जाएगा। और अगर n-1 ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये n-2 बन जाएगा। तो -1 के अंदर इलेक्ट्रॉन की एंट्री डिफिकल्ट है, तो n-2 में इलेक्ट्रॉन की एंट्री और डिफिकल्ट है, बिकॉज वी हैव टू मूव अगेंस्ट अ बिगर नेगेटिव चार्ज। एंड देन वी हैव n-3। तो इसका मतलब क्या है कि जैसी थर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हुआ न्यूट्रल में, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ 2p4 में, और तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ किसमें? 2p5 में। इज दिस पार्ट क्लियर? इज दिस पार्ट Yes. क्लियर और नहीं? ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक, तो ये हमारा लॉजिक है। कंसेप्ट समझ में आ गया या नहीं बताइए? इज इट क्लियर? सो दिस इज द बेसिक आइडिया वी हैव। ठीक है, एनी डाउट्स और नॉट? ठीक है, अब आ जाओ, आज इस चैप्टर को बिल्कुल वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आता है विच इज कॉल्ड एज चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी एंड hydration energy. Have we discussed the topic before? Have we discussed this topic before? No, Miraj? ma'am. और अब देखो, अब चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लॉजिक समझना। मान लो मेरे पास एक छोटा एटम है और मान लो मेरे पास एक बड़ा एटम है, ठीक है? तो जब मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे पास एक छोटा एटम है, मान लीजिए मेरे पास 1 चम्मच भर के स्पार्कल है, तो जब मेरे पास 1 चम्मच भर के स्पार्कल है, तो क्या होगा मुझे बताइए? कि मुझे यही स्पार्कल छोटी बॉल पे लगाना है और मुझे यही स्पार्कल बड़ी बॉल पे लगाना है। सेम स्पार्कल। अब तू बता, सेम अमाउंट ऑफ स्पार्कल जब मैं छोटी बॉल पे लगाऊंगी और वही सेम अमाउंट ऑफ स्पार्कल जब मैं बड़ी बॉल पे लगाऊंगी, तो क्या होता है मुझे बताइए? वही सेम स्पार्कल जब मैं बड़ी बॉल पे लगाऊंगी तो क्या होगा मुझे बताइए? कि जब भी हमारे पास एक छोटी बॉल है और जब भी हमारे पास एक बड़ी बॉल है, इसका क्या मतलब है कि मैम सेम अमाउंट ऑफ स्पार्कल अगर छोटी बॉल पे लगाऊंगी तो पर पॉइंट चार्ज, पर पॉइंट स्पार्कल ज्यादा आएगा। और यहाँ पे पर पॉइंट स्पार्कल कैसा आएगा? यहाँ पे पर पॉइंट स्पार्कल कैसा आएगा? बहुत ही कम आएगा। तो इसका मतलब जब पर पॉइंट स्पार्कल कम आएगा तो यहाँ पे जो स्पार्क है, यहाँ पे स्पार्क कम लगेगा, है ना? जो शाइन है पर पॉइंट वो कम है। और यहाँ पे स्पार्क जो है या जो शाइन है पर पॉइंट, वो बहुत ही कैसी है? शाइन पर पॉइंट बहुत ही ज्यादा है। तो द आइडिया हियर इज व्हाट, द आइडिया हियर इज व्हाट, जस्ट टेल मी। कि मैम जब भी हम पर पॉइंट स्पार्कल की बात करेंगे या पर पॉइंट स्पार्क की बात करेंगे या पर पॉइंट शाइन की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे बताइए? कि मैम जब भी पर पॉइंट स्पार्कल या ज्यादा हो गया तो इसका मतलब पर पॉइंट शाइन ज्यादा हो गई छोटी बॉल पे, स्पार्कल उतना ही है। और वही स्पार्कल जब बड़ी बॉल पे लगाऊंगी तो पर पॉइंट चार्ज कैसा हो गया? बहुत ही कम हो गया। और जब पर पॉइंट चार्ज बहुत ही कम हो गया, इसका मतलब स्पार्कल भी वहां पे काफी कम हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैम जैसे अगर मैं बोलती हूँ लिथियम+1 और मैं बोलती हूँ जी सोडियम+1, और एक मैं बोलती हूँ रुबीडियम+1, एक मैं बोलती हूँ सीजियम+1, तो आप लॉजिक मुझे ये बताओ कि एक लिथियम+1 है, एक सोडियम+1 है, एक पोटेशियम+1 है और एक कैल्शियम+1 है। तो चार्ज सब पे, तो चार्ज इज लाइक स्पार्कल, तो चार्ज सब पे +1 है। लेकिन आप सोच के देखो कि लिथियम का साइज कैसा है? थोड़ा छोटा। फिर सोडियम का साइज कैसा है? थोड़ा और बड़ा। फिर पोटेशियम का साइज कैसा है? थोड़ा और बड़ा। यस और नो? तो एज रिजल्ट लिथियम पे चार्ज +1 है, सोडियम पे +1 है, पोटेशियम पे भी +1 है। तो डाउन द ग्रुप अगर
तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज तो बढ़ रहा है। अब वही +1 का चार्ज जब छोटा छोटा इसके हर पॉइंट पे बटेगा छोटे एटम के, तो पर पॉइंट चार्ज डेंसिटी कैसी आएगी, पर पॉइंट चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो फॉर्मूला इसका रहता है चार्ज डेंसिटी इज बेसिकली व्हाट, चार्ज डेंसिटी इज बेसिकली चार्ज अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला यूनिट क्या बनेगी बेटा, चार्ज इज कूलम और इट इज गोइंग टू बी मीटर रेज़्ड टू पावर 6। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, और ये वॉल्यूम का स्क्वायर है, तो ये वॉल्यूम का स्क्वायर है, तो इसका मतलब मुझे बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चार्ज पर मीटर रेज़्ड टू पावर 6। अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? Yes, तो ma'am. तो कंसेप्ट हमारे पास क्या है, तो कंसेप्ट हमारे पास क्या है कि कंसेप्ट हमारे पास ये है, ठीक है, ये पार्ट है। तो स्पार्क हो जाए या शाइन हो जाए पर पॉइंट, ये बात है। तो आप ये मुझे बताओ कि साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो चार्ज तो वही है +1 का, चार्ज तो वही है +1 का, तो अगर चार्ज वही है +1, तो वही +1 का चार्ज जब हर बड़े आटे पे बटेगा तो पर पॉइंट चार्ज कम हो जाएगा। अब तू ये बता, अगर किसी पॉइंट पे चार्ज ज्यादा तो वो उस पॉइंट से अट्रैक्शन ज्यादा देगा, और अगर किसी पॉइंट पे चार्ज कम तो वो उस पॉइंट से अट्रैक्शन कम देगा। सही बात है। अगर किसी पॉइंट पे चार्ज ज्यादा तो वो उस पॉइंट से अट्रैक्शन कैसी देगा, कम, और अगर किसी पॉइंट पे चार्ज कम तो वो अट्रैक्शन कैसी देगा, वो अट्रैक्शन कैसी देगा, ज्यादा। तो माय पॉइंट इज कि अगर सोच के देख, लिथियम प्लस को मैं पानी में डाल दूं, और वहीं उसी बीकर में मैं पोटेशियम को पानी में डाल दूं, पोटेशियम इज ऑल्सो कैरिंग अ +1 चार्ज, सो लिथियम इज ऑल्सो कैरिंग अ +1 चार्ज, एंड पोटेशियम इज ऑल्सो कैरिंग अ +1 चार्ज। एम आई राइट और नॉट? तो अगर लिथियम इज कैरिंग अ +1 चार्ज एंड पोटेशियम इज ऑल्सो कैरिंग अ +1 चार्ज, इसका मतलब क्या है बताइए, कि अगर लिथियम ऑल्सो कैरीज अ +1 चार्ज एंड पोटेशियम ऑल्सो कैरीज अ +1 चार्ज, व्हाट एग्जैक्टली डज दैट मीन? कि मैम लिथियम का चार्ज साइज छोटा है और +1 चार्ज है, तो पर पॉइंट चार्ज इसके ज्यादा आएगा, तो पानी जब इसमें डालोगे ना तो पानी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और पानी इसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट हो जाएगा, वी आर गोइंग टू हैव H2O, वी आर गोइंग टू हैव H2O। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? दिस इज गोइंग टू बी O नेगेटिव, और H पे कैसा चार्ज आ जाएगा मुझे बताओ, H पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। कंसेप्ट समझ में आया? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओ नेगेटिव को एक लेयर में अट्रैक्ट कर रहा है, ओ को जहां जहां से मौका मिलेगा ओ घुसने की कोशिश करेगा, क्योंकि लिथियम के हर पॉइंट पे बहुत ज्यादा चार्ज है। और क्योंकि लिथियम के हर पॉइंट पे बहुत ज्यादा चार्ज है बेटा, इसका मतलब वो एक लेयर बनाएगा, उसको बोलते हैं प्राइमरी लेयर, फिर सेकेंडरी लेयर, फिर टर्शियरी लेयर, लाइक दैट। तो पानी की लेयर लिथियम के चारों तरफ, इट्स लाइक जैसे सलमान खान चल रहा है तो सब उससे हाथ मिलाना चाह रहे हैं। तुम समझ रहे हो? क्योंकि उसका अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, उसका ऑरा बहुत बढ़िया है। क्यों ऑरा बहुत बढ़िया है? क्योंकि ही इज अ रिच मैन, ही इज अ वेल्दी मैन, फेमस मैन, यू अंडरस्टैंड? सिमिलरली लिथियम हैज अ हाई चार्ज डेंसिटी, तो जैसे ही वो पानी के बीच में से गुजरेगा तो सारे पानी के मॉलिक्यूल उससे चिपक जाएंगे, और जब सारे पानी के मॉलिक्यूल से चिपक जाएंगे, तो एज अ रिजल्ट व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? सो वी विल हैव लिथियम प्लस, और लिथियम प्लस के साथ हमारा कौन चार्ज बॉन्ड बना लेगा, लिथियम प्लस के साथ कौन बॉन्ड बना लेगा मुझे बताइए, लिथियम प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा हमारा वाटर। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं बताइए? इज इट क्लियर? गॉट Yes, इट? ma'am. सो दैट इज द आइडिया। तो अब मुझे एक बात बता, एक पानी का मॉलिक्यूल फ्री घूम रहा था, तो सोच उसकी एनर्जी 100 थी, 100 जूल थी, उसकी एनर्जी 100 जूल थी। गॉट इट? और उसकी एनर्जी अगर 100 जूल थी, इसका क्या मतलब मुझे बताओ, कि पानी का मॉलिक्यूल फ्री था, उसकी एनर्जी कितनी थी, 100 जूल थी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास पानी का मॉलिक्यूल है और उसकी एनर्जी 100 जूल थी, गॉट द पॉइंट? तो अब पानी जब लिथियम से चिपक गया, अब थोड़ी इतना फ्रीली घूम पाएगा, तो अब उसकी एनर्जी मान ले 20 जूल हो गई। तो चेंज इन एनर्जी कितना आया, 20 - 100 - 80। समझ में आ रही है बात? तो ये जो एनर्जी होती है ना, ये वाटर लूज कर देता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स लूज दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, तो लिथियम की जो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते थे, लूजर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट।
You understand? The water molecules lose this energy in the form of heat. And when they lose this energy in the form of heat, इसका क्या मतलब है कि that release energy by water molecules is called as hydration energy. फंडा समझ में आया है नहीं? ठीक है, तो जब भी एक मेटल आयन पानी में जाएगा तो पानी के मॉलिक्यूल्स दे फील सम अट्रैक्शन, काइंड ऑफ बॉन्ड विद दैट आयन. तो अगर पॉजिटिव आयन गया है तो ओ नेगेटिव की साइड से वो पानी को अट्रैक्ट करेगा और पानी की स्पीड जो है वो घट जाएगी. और अगर पानी की स्पीड घट जाएगी तो 100 से घट के वो एनर्जी कुछ तो हो जाएगी, क्योंकि वो अब पानी के मॉलिक्यूल्स इतना फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे. अच्छा, क्या ऐसा होता है कि लिथियम के आने से पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत फ्रीली मूव, आसपास के कुछ मॉलिक्यूल नहीं कर पाएंगे, कुछ जो दूर है उससे वो कर पाएंगे. लेकिन आप वही सोचो, पोटेशियम का साइज बड़ा है, और पोटेशियम का साइज अगर बड़ा है तो उस पर चार्ज कैसा है? पोटेशियम का साइज कैसा है? बहुत ही छोट बड़ा है. तो पर पॉइंट चार्ज कैसा हो जाता है? पर पॉइंट चार्ज कैसा हो जाता है मुझे बताओ? बहुत ही कम. और अगर पर पॉइंट चार्ज बहुत ही कम है, इसका मतलब क्या है कि पानी जब अट्रैक्ट होगा तो पानी की लेयर तो आएगी, पर क्या नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में यहाँ पे अट्रैक्शन कैसी बनेगी? कम. क्या मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन कैसे बनने वाली है? कम. सो वी आर गोइंग टू हैव दिस H2O. बात समझ नहीं? वी आर गोइंग टू हैव दिस H2O. इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जब Yes, ma'am. यहाँ इसकी लेयर कम होगी तो अब आपसे को जनरली इसमें एक ही लेयर आएगी. और मैं मान लो रुबीडियम बोल दूं तो रुबीडियम कैसा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम. रुबीडियम तो पोटेशियम से भी बड़ा है. तो पर पॉइंट चार्ज रुबीडियम का और कम है. तो वो पानी की एक ही लेयर बनाएगा. पर सोच के देखो, पोटेशियम में मान लो एक ही लेयर बनी, तो एक लेयर में मान लो 100 पानी के मॉलिक्यूल आ गए. तो रुबीडियम की एक ही लेयर में हो सकता है सिर्फ 20 ही पानी के मॉलिक्यूल आए. क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि इट इज नॉट अट्रैक्टिंग दी वाटर मॉलिक्यूल्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये हमारा कंसेप्ट. तो इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी कौन रिलीज करेगा ज्यादा? मैं कह रही हूँ जिसके केस में ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स कस के पकड़ा जाएगा, उस केस में ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट पे आएंगे. और जब ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट पे आएंगे, तो इसका क्या मतलब है? व्हेन मोर मॉलिक्यूल्स विल कम फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी स्टेट, देन देन द रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी और हीट एनर्जी इज कॉल्ड एज द हाइड्रेशन एनर्जी, विच विल बी मोर. तो क्या मैं अब ये बात बताऊं कि डाउन द ग्रुप जाते जाते, आप बताओ, डाउन द ग्रुप जाते जाते चार्ज डेंसिटी को क्या होता है बताइए? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम. तो इनका जो साइज है वो कैसा है डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं? तो इनका साइज इंक्रीजेस, है ना? एंड चार्ज रिमेन्स. चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट. तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कितनी आ जाएगी? तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास चार्ज अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर. तो चार्ज की वैल्यू है +1 और वॉल्यूम स्क्वायर. क्या मेरी बात समझ में आई? तो बताइए. Yes, ma'am. इज इट क्लियर? तो दैट्स द आइडिया. तो दैट्स द आइडिया. फंडा समझ में आया या नहीं? तो क्या मैं बोल सकती हूँ चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम. इसमें क्या हो रहा है? इसमें सबका चार्ज +2 है. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम. तो डाउन द ग्रुप जो हम जा रहे हैं तो इसका साइज कैसा है? इसका साइज इंक्रीजेस. साइज इंक्रीजेस, चार्ज सबका +2 है. तो पर पॉइंट चार्ज क्या रहेगा मुझे बताओ? पर पॉइंट चार्ज हमारा कम हो जाएगा. तो इस ग्रुप में भी डाउन द ग्रुप चार्ज डेंसिटी डिक्रीज. तो इन एवरी ग्रुप दिस रिजल्ट होल्ड्स ट्रू. कोई भी इसमें कोई खास एक्सेप्शन नहीं है. तो अब मुझे बताओ किस केस में ज्यादा पानी अट्रैक्ट होगा? बेरिलियम +2 में कि कैल्शियम +2 में? बताइए. बेरिलियम +2 में या कैल्शियम +2 में? कहाँ पे मुझे बताइए पानी ज्यादा अट्रैक्ट होगा? बताइए.
Beryllium +2. बेरिलियम+2 में पानी ज्यादा अट्रैक्ट होगा। अगर बेरिलियम+2 में पानी ज्यादा अट्रैक्ट होगा तो इसका क्या मतलब है? बताइए, बताइए तो इसका क्या मतलब है? अगर बेरिलियम+2 में पानी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट? वी आर गोइंग टू हैव बेरिलियम+2 एंड वी आर गोइंग टू हैव Mg+2 एंड वी हैव कैल्शियम+2 एंड स्ट्रोंशियम+2। सो डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, चार्ज डेंसिटी हमारी कम होती जा रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, गॉट इट? ma'am. और पानी कम अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब डाउन द ग्रुप जब जा रहे हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो रही है, क्योंकि कम पानी के मॉलिक्यूल्स की स्पीड चेंज हो रही है। तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और ये ट्रेंड हर ग्रुप में चलता है। बात समझ में आई? ये ट्रेंड हमारा हर ग्रुप में चलता है। सो व्हेन वी आर डीलिंग विद द हाइड्रेशन एनर्जी, दिस हाइड्रेशन एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? बताइए, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. एनी डाउट्स इन दिस? जस्ट टेल। No doubts, ma'am. गॉट इट? तो ये हाइड्रेशन एनर्जी। अब मैं अगर आपसे पूछती हूँ अलोंग द पीरियड क्या होता है, बताइए। तो अलोंग द पीरियड, लेट्स चेक। अलोंग द पीरियड मुझे बताओ, एटॉमिक रेडियस का क्या फर्क पड़ता है? एटम थोड़ा बड़ा होता है, ग्रेजुअली ही सही साइज घटता है, ग्रेजुअली ही सही साइज घटता है ना? तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई ये है लिथियम, ये है बेरिलियम, ये है बोरॉन, ये है कार्बन, ये है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब क्या है? लिथियम का चार्ज है +1, बेरिलियम का चार्ज है +2, बोरॉन का चार्ज है +3, कार्बन इज ±4, जो भी। अब ये बताओ क्या हो रहा है कि अलोंग द पीरियड जब हम गए तो चार्ज बढ़ा, यस और नो? चार्ज बढ़ा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो अलोंग जब आप जाओगे तो चार्ज बढ़ रहा है और साइज घट रहा है। आपके हिसाब से ट्रेंड क्या होना चाहिए, बताइए? बताइए कि मैम यहाँ चार्ज +1 है पर साइज बड़ा है, तो +1/साइज स्क्वायर। आई यू अंडरस्टैंडिंग? फिर बेरिलियम का साइज, चार्ज बढ़ गया पर साइज छोटा हो गया। फिर यहाँ चार्ज बढ़ गया और साइज और छोटा हो गया। तो अब मुझे बताओ क्या होने वाला है? क्या पर पॉइंट चार्ज आपके हिसाब से यहाँ बढ़ते रहना चाहिए कि नहीं बढ़ते रहना चाहिए? बताइए। पर पॉइंट चार्ज अलोंग द पीरियड बढ़ते रहना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बिकॉज साइज तो छोटा होता जा रहा है, पर उसी साइज पे अब +2 +3 ये वाले एटम्स रहने चाहिए। सो वी आर गोइंग टू हैव अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड the the charge remains, or charge goes on increasing, the charge goes on increasing, am I right? And hence along the period the charge goes on increasing, ठीक है? और क्योंकि चार्ज बढ़ता जा रहा है एंड साइज डिक्रीजेस, तो अलोंग द पीरियड चार्ज डेंसिटी हमेशा बढ़ेगी। चार्ज डेंसिटी हमेशा बढ़ेगी, और चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो अलोंग द पीरियड हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। समझ में आ गया? हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। बात समझ नहीं? कोई दिक्कत? तो अब अगर मैं आपसे बोलती हूँ, मुझे बताओ सोडियम प्लस की चार्ज डेंसिटी ज्यादा कि मैग्नीशियम+2 की चार्ज डेंसिटी ज्यादा, या एल्यूमिनियम+3 की चार्ज डेंसिटी ज्यादा? तो क्या बोलोगे आप? बताइए कि सोडियम प्लस की चार्ज डेंसिटी ज्यादा कि मैग्नीशियम प्लस की चार्ज डेंसिटी ज्यादा या एल्यूमिनियम प्लस की चार्ज डेंसिटी ज्यादा? किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा? बताइए। सो व्हाट डू यू थिंक वी आर गोइंग टू हैव? वी आर गोइंग टू हैव Na+, Mg+2 एंड Al+3। किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा? बताइए। तो अलोंग द पीरियड साइज घटता है, और अगर अलोंग द पीरियड साइज घटेगा तो इसका क्या मतलब है? कि चार्ज हमारा बढ़ रहा है पर साइज हमारा छोटा हो रहा है। इसका मतलब एल्यूमिनियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा, फिर मैग्नीशियम की, और फिर सोडियम। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? जस्ट ठीक है? फंडा समझ में आ गया या नहीं? बताइए। ठीक है? तो अलोंग द Yes. पीरियड चार्ज डेंसिटी बढ़ती है।
सेम इज द कॉन्सेप्ट दिस ऑल्सो. नाउ अब मुझे बताओ, अब मेरे पास आता है पोलराइजिंग पावर. व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजिंग पावर? पोलराइजिंग पावर जनरली हम देखते हैं कैटायंस की. पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे पास लिथियम है, और वहीं मेरे पास सोडियम है, और वहीं मेरे पास पोटेशियम है, और यहाँ मेरे पास एक बड़ा सा एटम बैठा है. ये बिग एटम होना चाहिए. प्रेफरेबली एक मेरे पास एनायन होना चाहिए. आई यू अंडरस्टैंडिंग? प्रेफरेबली मेरे पास ये क्या होना चाहिए? एक बिग एटम होना चाहिए, और प्रेफरेबली मेरे पास ये एक एनायन होना चाहिए. सो वी मस्ट हैव अ बिग एटम, एंड बाय नेचर इट मस्ट बी सम एनायन. तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास यहाँ पे कौन है? मेरे पास यहाँ न्यूक्लियस है, और लिथियम प्लस है, और पोटेशियम प्लस है, और सोडियम प्लस है. बोलो हाँ है ना? सो व्हाट डू वी हैव द न्यूक्लियस. और इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है. ये बात समझ आती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की वेव होती है. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की वेव घूम रही है बहुत ज्यादा, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देते हैं. इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा किसी गोले में, पर इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव वेव आसपास घूम रही है. अब आप ये सोचो कि मैं लिथियम प्लस को इसके पास बिठा दूं जाके. अब आप मुझे बताओ, क्या लिथियम के हर पॉइंट पे चार्ज ज्यादा है? तो लिथियम का हर पॉइंट अपने पॉइंट से अट्रैक्शन, लिथियम का हर पॉइंट अपने पॉइंट से अट्रैक्शन लगाएगा. क्या मेरी बात समझ आई? और अगर लिथियम का हर पॉइंट अपने पॉइंट से अट्रैक्शन लगाएगा, इसका मतलब मुझे बताइए क्या है? लिथियम का हर पॉइंट अगर अपने पॉइंट से अट्रैक्शन है, इसका मतलब मुझे बताइए क्या है? बताइए. बताइए. कि मैम सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स की, वो सारी की सारी वेव जो है, वो लिथियम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी. तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन वेव विल ट्रेवल हियर. इट विल ट्रैवल मोर ऑन दिस साइड. सारी इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल कम हियर. तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं कि लिथियम जो है वो ऐसा है, और पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट होकर आ जाता है. तो अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के लिथियम की तरफ शिफ्ट हो गया, क्यों? क्योंकि लिथियम के हर पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है. कंसेप्ट समझ में आया है नहीं बताया? तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है बताइए? कि मैम लिथियम हैज मोर पोलराइजिंग पावर. पोलराइजिंग पावर मीन्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ another atom towards itself. Are you understanding? लेकिन वहीं अगर मैं सोडियम प्लस रख दूं, तो सोडियम प्लस का साइज बड़ा है, और क्योंकि सोडियम प्लस का साइज बड़ा है, तो इसका मतलब मुझे बताइए क्या है? क्योंकि सोडियम प्लस का साइज बड़ा है, तो इसका मतलब मुझे बताइए क्या है? कि हमारे पास ये एक एटम है, और ये मेरा सोडियम प्लस है, ये मेरा Na प्लस है. बोलो हाँ है ना? और अगर ये मेरा Na प्लस है, और ये मेरा एक बड़ा एटम है. यू अंडरस्टैंड? तो अगर ये मेरा सोडियम प्लस है, और ये मेरा एक बड़ा एटम है, और ये मेरा न्यूक्लियस है, so this is going to be my nucleus, and this is going to be my sodium. Got the point? तो सोडियम के पर पॉइंट पे चार्ज इतना नहीं है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतना पुल नहीं कर पाएगा. तो ऐसे बुक्स कैसे दिखाती है? कहती है कि सोडियम ने इसको ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं किया, सोडियम ने इसको ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं किया, लेकिन लिथियम ने इसको डिस्टॉर्ट कर दिया. जहां पे पॉइंटेड एंड है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन वेव ज्यादातर यहाँ घूमेगी, और ठीक है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वेव हमको इस एरिया में मिलेगी, और इस एरिया में इलेक्ट्रॉन वेव नहीं मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगा लिया. क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगा लिया, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर में खींच लेगा. क्या मेरी बात समझ में आई? तो बताइए. इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी. इज इट क्लियर और नॉट? Clear, ma'am. ठीक है. तो पोलराइजिंग पावर क्या होती है? द एबिलिटी टू पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ. अंडरस्टूड और नॉट? गॉट इट? दिस इज द आइडिया वी हैव. ठीक है जी. तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास. ऑलराइट.
So I hope you're understanding that when we have the case of nucleus like that. Any doubts? Got this or not? Got it, ma'am. ठीक है. So क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि कैटायन हो चाहे एनायन? पहली बात तो पोलराइजिंग पावर सिर्फ किसकी होती है? कैटायंस की. तो पोलराइजिंग पावर is calculated only for cations. Polarizing power is calculated only for cations. ठीक है. तो जिसका चार्ज ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा कैटायन की, है ना. तो इवेंचुअली जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा. तो पीपी पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो अगर पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है. ठीक है. कि पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर कॉन्सेप्ट. ठीक है. रहेगा. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब अगर पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी तो इसका क्या मतलब है? बताइए. कि हम ये बोल सकते हैं कि लिथियम आ गया, फिर सोडियम आ गया, फिर पोटेशियम आ गया, फिर रुबीडियम आ गया, फिर सीजियम आ गया. तो हर ग्रुप में डाउन द ग्रुप पोलराइजिंग पावर गोज ऑन डिक्रीजिंग. लिख लो इसको. सो पोलराइजिंग पावर गोज ऑन डिक्रीजिंग. पोलराइजिंग पावर गोज ऑन डिक्रीजिंग. सही बात है. दैट इज द आइडिया. इसी तरह से अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रॉन्शियम +2, बेरियम +2. सो डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे कि पोलराइजिंग पावर गोज ऑन डिक्रीजिंग. इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी. Yes, ma'am. फंडा समझ में आ गया? ठीक है. ये कंसेप्ट है. एक होती है हमारे पास पोलराइजेबिलिटी. ठीक है. देयर इज अनदर टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज पोलराइजेबिलिटी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेबिलिटी? लेट्स सी. पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है, पोलराइजेबिलिटी काउंट की जाती है, इज कैलकुलेटेड फॉर, पोलराइजेबिलिटी इज कैलकुलेटेड फॉर एनायंस. पोलराइजेबिलिटी इज कैलकुलेटेड फॉर एनायंस. बात समझ में आ रही है? तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि पोलराइजेबिलिटी इज बीइंग कैलकुलेटेड फॉर एनायंस, क्या मतलब? कि भाई कौन सा एनायन अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से मूव करने देगा, है ना. भाई मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप ऐसे समझो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना पीयर प्रेशर में बच्चा इन्फ्लुएंस हो जाता है. तो अगर हम ये कह रहे हैं कि पीयर प्रेशर में बच्चा इन्फ्लुएंस हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? मुझे बताइए. कि अगर हम ये बोलें कि भैया पीयर प्रेशर में बच्चा इन्फ्लुएंस हो गया, तो एक बच्चा ऐसा है जिसको तुम जरा सा कुछ गलत सिखाओ वो फट सीख जाएगा और उसको लगेगा ही नहीं, उसको लगेगा जो ये सिखा रहे हैं यही सही है. लेकिन एक अगर मैं बात करूं किसकी, मैं एक बात करूं जिस बच्चे को तुम कितना बिगाड़ने की कोशिश कर लो वो अपने रूटेड है बहुत ज्यादा. ठीक है. उसको पता है मेरी ये वैल्यूज है, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, आई एम नॉट गोइंग टू चीट. तो वो बच्चे का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है. तो ऐसे ही हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम पोलराइजेबिलिटी की बात करते हैं तो इन पोलराइजेबिलिटी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, कि पोलराइजेबिलिटी का बेसिक मतलब क्या है? बताइए. पोलराइजेबिलिटी का एग्जैक्टली मतलब क्या है? दैट दैट कि कितनी आसानी से एक एटम, कैटायन तो खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन, कैटायन तो खींचेगा. कैटायन तो मैंने सेम रख लिया Li+, और कैटायन मैंने फिर से सेम रख लिया Li+. पर मान लो मेरे पास एक छोटा एनायन है, मान लो मेरे पास एक छोटा एनायन है, और वहीं मान लो मेरे पास एक बड़ा एनायन है. तो छोटे एनायन का न्यूक्लियस कहाँ है? छोटे एनायन का न्यूक्लियस इज एग्जैक्टली द सेंटर, और बड़े एनायन का न्यूक्लियस इज समवेयर हियर. तो अगर बड़े एनायन का न्यूक्लियस इज एग्जैक्टली एट द सेंटर और छोटे एनायन का न्यूक्लियस इज एट द सेंटर लाइक दैट, तो इसका क्या मतलब है? कि मैम लिथियम हमारे पास है, एक छोटा एटम हमारे पास है, और छोटा एटम अगर है तो क्या होने वाला है कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और छोटा एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके न्यूक्लियस उसको कस के पकड़ता है. तो लिथियम अगर पुल भी करेगा इसकी इलेक्ट्रॉन वेव को, तो क्या छोटा एटम का जो छोटा एनायन है, स्मॉल एनायन, क्या स्मॉल एनायन के इलेक्ट्रॉन्स लिथियम की तरफ मूव कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? बताइए. तो छोटे एनायन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिथियम की तरफ कुछ खास मूव करने वाले नहीं है.
लेकिन जो बड़ा एनायन है उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो अपने न्यूक्लियस से काफी दूर है। जो बड़ा एनायन है उसके इलेक्ट्रॉन्स ये काफी दूर है, देखो। और अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स आर फार ऑफ, अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स आर फार ऑफ, तो इसका क्या मतलब है मुझे बताइए। अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स आर फार ऑफ तो इसका क्या मतलब है, बताइए। कि मैम क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर हैं, है ना, तो ये इनकी इलेक्ट्रॉन वेव बहुत ज्यादा हेल्ड नहीं है टाइटली। और अगर इसकी इलेक्ट्रॉन वेव बहुत ज्यादा टाइटली हेल्ड नहीं है तो इसका क्या मतलब है मुझे बताइए। कि लिथियम इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा और इसकी सारी की सारी वेव कोने में आ जाएगी, क्योंकि लिथियम ने फोर्स लगाई और इसका न्यूक्लियस इसको रोक नहीं पाया। इसका न्यूक्लियस इसको रोक नहीं पाया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सो एज अ रिजल्ट व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? कि मैम हमारे पास यहाँ पे कौन है, हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, और वो न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट, ठीक है, और वो न्यूक्लियस जो है, वो न्यूक्लियस जो है वो क्या हो रहा है, वो अट्रैक्ट हो रहा है, यस और नो। और अगर वो न्यूक्लियस अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, कि मैम वो जो लिथियम प्लस है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पा रहा है, क्योंकि ये जो बड़ा एनायन है, दिस इज अ बिग एनायन, इस बिग एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। इस बिग एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। कंसेप्ट समझ में आ गया? और क्योंकि इस बिग एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि इस बिग एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है कि मैम कैटायन अगर छोटा रहेगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा रहेगी। और पोलराइजेबिलिटी मतलब हाउ इजीली एन एनायन is capable of, or allowing, how capable an anion is capable of allowing his electrons to move towards the cation, move towards the cation। अगर ज्यादा जल्दी से आसानी से cation को अलाउ कर देगा, so इसका मतलब क्या है, हाउ इजिली कैन दी anion, you get it? So this means कि it is going to have high polarizability। अगर it has high polarizability, बात समझ नहीं। लेकिन अगर उसने आसानी से अलाउ नहीं किया छोटे आयंस, तो स्मॉल एनायंस की पोलराइजेबिलिटी कैसी होती है, स्मॉल एनायंस की पोलराइजेबिलिटी इज वेरी लेस, और बिग एनायंस की पोलराइजेबिलिटी इज वेरी हाई। बात समझ नहीं? एज बिग एनायंस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आर नॉट टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट और नॉट अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजिंग पावर। फंडा समझ में आ गया? हाइड्रेशन एनर्जी क्लियर हो गई? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ड्यू फॉर दिस चैप्टर विल बी स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं विच इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं विच इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। Bye, ma'am. बाय बेटा। समझ में आया ना आज का सारा आपको? Yes, ma'am. ठीक है।